Hello students, how are you? Welcome again in our new session chapter 2 and topic is phylum Protista. In last session, we already have discussed the first phylum of the Whittaker's five kingdom theory. First was Monera, right? So all prokaryotic unicellular living organisms come in Monera. Now let's do the next phylum. Our next phylum is phylum Protista, right? Includes all unicellular eukaryotes in this Protista. These unicellular eukaryotes animals may be a single form, solitary form में हो सकते हैं, मे बी इन कॉलोनी फॉर्म, एक ग्रुप फॉर्म में भी हो सकता है, राइट। सिंगल फॉर्म की एग्जांपल की बात करें अमोइबा, एंड कॉलोनियल फॉर्म की बात करें तो हम बात कर सकते हैं यहाँ पर स्लाइमोड्स की बात कर सकते हैं, राइट। लाइक हैव द टर्म प्रोटिस्टा इज गिवन बाय हीकल साइंटिस्ट ने टर्म सबसे पहले प्रोटिस्टा दी थी। स्टूडेंट्स, you know what is prokaryotic and what is eukaryotic? As we know, we have already concept clear कर चुके हैं 9th क्लास के अंदर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है, राइट। कोई बात नहीं, वापस से क्लियर कर लेते हैं। प्रोटिस्टा मीन्स द प्रिमिटिव सेल without any definite nucleus and without any definite cell organelles. Well bounded cell organelles नहीं होते, न्यूक्लियस नहीं होता, suspended nucleus in cytoplasm, such kind cells called prokaryotic. And eukaryotic, a cell with a definite nucleus with a definite cell bounded cell organelles. Is that clear? Right? Okay. Next, let's have brief classification of protistians. Protistians can be divided in different three groups. Major three groups हैं जिनके अंदर हम इनको divide कर सकते हैं। First, photosynthetic protistians, they all are autotropics. Why they are all autotropics? Because they possess chlorophyll, chloroplast. They can perform photosynthesis by which they can obtain their food from photosynthesis, right? Next, chrysophytes, pyrophytes and euglena, different three division in photosynthetic protistians. Chrysophytes means golden algae. Pyrophytes means fire algae and euglenoids means the link between plants and animals. एक little idea और ले लेते हैं अपन। क्राइसोफाइट्स में इसको गोल्डन क्यों बोला, राइट। इन बॉडीज के अंदर सेल वॉल होती है, ध्यान रख लीजिएगा, एक्सेप्ट ऑफ दिस, इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती, बाकी इसमें सेल वॉल होती है, इसमें सेल वॉल होती है। क्लोरोप्लास्ट इसमें भी होता है, क्लोरोप्लास्ट इसमें भी होता है। They are like a plant because they are algae. They possess chloroplast. They can perform photosynthesis, autotropics. Even euglenoid animals and euglenoid protistians can also perform photosynthesis as they have not a cell wall, but doesn't matter here because they possess chloroplast, and chloroplast and chlorophyll is a much required for conduction of photosynthesis, right? तो क्राइसोफाइट्स मीन्स गोल्डन एल्गी बिकॉज इनकी सेल वॉल में स्पेसिफिक सेलुलोज के साथ सिलिका पार्टिकल्स सस्पेंडेड रहते हैं। सिलिका पार्टिकल्स के सस्पेंडेशन की वजह से इनकी सेल वॉल कभी भी डिस्ट्रक्टेबल नहीं होती, डिस्ट्रैक्ट नहीं होती, इवन इनकी डेथ होने के बाद में। और वो जो सिलिकेटेड और सिलिकाफाइड जो भी सेल वॉल होती है वो उनके मरने के बाद में इस तरह से गोल्डन फॉर्म में सी लेवल पे अंदर बैठ जाती है। ध्यान रख लीजिएगा, दीज ऑल आर प्राइमरली एक्वेटिक, सारे के सारे प्राइमरी लेवल पर एक्वेटिक है। सो इज दैट क्लियर? क्राइसोफाइट्स मींस द गोल्डन लाइक कलर्स बिकॉज ऑफ देयर सिलिकेसियस or silicified cell wall which remains even after the death of chrysophytes. That's why it is called golden algae, right? golden algae के एग्जाम्पल की तो बाद में बात करेंगे अपन, एक बार ब्रीफ आइडिया ले लें। चलो कोई बात नहीं, क्राइसोफाइट्स के अंदर हम लेते हैं यहाँ पर चलो बाद में बताएंगे। पायरोफाइट्स, पायरो मीन्स फायरा, फायर एंड फाइट्स मीन्स algae. These all living organisms create a luminous
फायर क्रिएट करते हैं, ल्यूमिनियस क्रिएट करते हैं, जिससे वाटर में आग लगी हुई से नजर आती है, राइट, बिकॉज ऑफ देयर केमिकल रिएक्शन इन विच आर प्रेजेंट इन सेल वॉल। स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन इनकी सेल वॉल में होती है, जिसकी वजह से एक ल्यूमिनियस इफेक्ट क्रिएट होता है। दैट्स व्हाई दीज ऑल कॉल बायोलुमिनेसियस और बायोलुमिनियस लिविंग ऑर्गेनिम्स और प्रोटिस्टियंस, राइट। यूग्लिनोइड, यूग्लिना आता है, याद कीजिए यूग्लिना में कैरेक्टर्स वाइज प्लांट जैसे भी कैरेक्टर्स है और एनिमल्स जैसे भी कैरेक्टर्स है। They does not possess cell wall, but they can perform photosynthesis. Like this, they can group as plants, but as they have not a cell wall, and their mode of nutrition also holozoic जैसे हम करते हैं, that's why they also can be included in animals. Animals में भी include किया जा सकता है. That's why euglenoids animals are linked between plants and animals. Right? These all are photosynthetic. Next, protozoans, protistians. These all are animal like living organisms. Protistians, protozoan, protistians are animal like living organisms because they does not possess cell wall. They does not possess cell wall. They cannot perform photosynthesis. Their mode of nutrition holozoic and parasitic. They used to absorb the food and after digestion they consume the food. That mode of nutrition called holozoic. जैसे हम होते हैं, हमारे एलिमेंट्री कैनाल है, हम उसको इंजेक्शन करते हैं, डाइजेशन करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं, एसिमिलेशन करते हैं और अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर इंजेक्शन के थ्रू निकालते हैं। These all are protozoans, protistians are holozoic. Parasitic, as they can conduct, as they have a not holozoic, that's why the A condition, the only condition, goes with a parasitic mode of nutrition. They consume food for other living organisms. They provide them disease. They lost them without killing them. उनको मारे बगैर। एंडोपैरासाइट हो सकता है, एक्सोपैरासाइट हो सकता है। ये 4 ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं, किस बिहाफ पर? लोकोमोशन के हिसाब से, लोकोमोटरी ऑर्गन के हिसाब से, लाइफ की टेंडेंसी क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, मोड ऑफ लाइफ क्या है, दैट इज द मेन थिंग ऑन द बेसिस और बिहाफ। प्रोटिस्टियंस, प्रोटोजोन प्रोटिस्टियंस कैन बी डिवाइडेड इन व्हाट, हाउ मच डिफरेंट ग्रुप? 4 ग्रुप, 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। किस बिहाफ पर? लोकोमोशन एंड मोड ऑफ लाइफ। मोड ऑफ लाइफ मीन्स दे आर फ्री, दे आर पैरासाइट, राइट। लेट्स अप अमोइबॉइड, अमीबा आता है, इसके अंदर सूडोपोडिया लोकोमोटरी ऑर्गन है। दे कैन एक्सप्रेस देयर लोकोमोशन बाय सूडोपोडिया, राइट। सिलिएटा, दे हैव न्यूमरस टाइनी bristle like structures generally which are used for locomotion, like these called cilia. Cilia locomotory organs are present in a particular living organism. That example is paramecium. That is paramecium. Paramecium. और इसका एग्जाम्पल हो गया अमोइबा। Flagellates, they have a flagella locomotory organ. Trypanosoma is a parasite in a living body, human being, right? In a sporozoid, they have not any locomotory activities. That's why there's no need to have any locomotory appendages or organs. Does not need any kind of that. They have not locomotion. They have not a need to have the locomotory organs here. लोकोमोशन इनमें होगा नहीं, लोकोमोटरी यहाँ पर कोई भी ऑर्गन नहीं होगा। दैट्स व्हाई दे आर स्पोरोजॉइड, दे ऑल आर एंडोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट होते हैं, डिजीज फैलाते हैं। तो इसका एग्जांपल हो गया ट्रिपनोसोमा, द एग्जांपल ऑफ फ्लैजिलेट्स बिकॉज दे पोजेस फ्लैजिला एज ए लोकोमोटरी ऑर्गन्स, appendages. Sporozoids does not possess any kind of locomotory organs or appendages. And the example is Plasmodium. Plasmodium, a living organism. This is the scientific name of Plasmodium, which is
विच इज द एंडोपैरासाइट ऑफ मलेरिया डिजीज का ये पैरासाइट होता है। पता है इसको कौन कैरी करता है? फीमेल एनाफेल्स, राइट। नेक्स्ट, स्पोरोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो भी लिविंग ऑर्गेनिम्स रखते हैं प्रोटिस्टियंस, दीज ऑल आर कॉल्ड एज स्पोरोफाइटिक प्रोटिस्टियंस। प्रोटिस्टियंस एग्जांपल, they have a sporophytic because they can feed, or generally they feed on dead decaying organic matter like dead plants, dead animals, and wastage like living organisms or their products. So they consume dead and decaying organic substance by decomposing them, by decaying them. That these all are called sporophytic protistians. Examples are, only a single example are here, slime molds. They are primitive fungus like structures, right? कभी इनकी बॉडी में सेल वॉल दिखती है, कभी इनकी बॉडी में सेल वॉल नहीं दिखती। इसी हिसाब से कभी प्लांट की तरह दिखते हैं, कभी ये प्लांट की तरफ नहीं दिखते, इसलिए इनको बड़ा बैरूपिया टाइप का कहते हैं। ये भेष बदलते रहते हैं, अपने रूप को बदलते रहते हैं। तो स्लाइम मोल्ड जनरली नॉन एज, अच्छा एक थिंग हो गए, स्लाइम मोल्ड हमेशा ग्रुप में होते हैं। They are single cell, even they are made up of a single cell, but they generally found as a cluster form. Group में होते हैं, group in the sense that group, slime mold के इस grouping nature की वजह से इनको commonly name से जाना जाता है Plasmodium. This is not an animal name, this is not a protistian living organism, this is the common term which is used for slime mold. Slime mold के लिए यूज किया जाता है। तो आपका ध्यान यहां पर अट्रैक्ट करना चाहूंगा, यहां मैंने स्टार पॉइंट लगाया और यहां पे भी मैंने स्टार पॉइंट लगाया। देखिए दोनों जगह मैंने प्लाज्मोडियम लिखा है, दिख रहा है? प्लाज्मोडियम यहां पे भी लिखा है, यहां पे भी लिखा है। बता सकते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है? ये कॉमन नेम है, कॉमन स्टेज ऑफ लाइफ विच इज ऑफ स्लाइम मोल्ड। दिस इज द कॉमन, दिस इज नॉट अ कॉमन, दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये कॉमन नेम है, राइट? कॉमन नेम है फर्स्ट ग्रुप द क्रायोसोफाइटा। एज यू नो, क्रायोस मीन्स गोल्डन and phyta mean algae. Example, diatoms and dasmids. Planktons, because they can float passively on water, sea level में होते हैं, passively ये float कर सकते हैं, that's why they call planktons. Animals में भी planktons आएंगे, यहाँ planktons यहाँ पर टर्म है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, इसलिए इन planktons को हम कह सकते हैं phytoplanktons. Because as they can perform photosynthesis, as they possess cell wall made up of cellulose, that's why they call planktons phytoplanktons. इनको कहेंगे. एनिमल्स होंगे, सेल वॉल नहीं होगी और वो पैसिवली फ्लोट करता है तो उसे जू प्लैंक्टन्स कहेंगे, राइट? आगे की बात है. नेक्स्ट, चीफ प्रोड्यूसर, सी लेवल पर यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सॉलिटेयर फॉर्म में, सिंगल फॉर्म में रहते हैं और सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कंडक्ट कर सकते हैं, दैट्स व्हाई दे आर चीफ प्रोड्यूसर. यानी फोटोसिंथेसिस करने वाले सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर कौन है? सबसे पहले है क्राइसोफाइट, राइट? सेल वॉल की स्पेशलिटी क्या है? मेड अप ऑफ सेलुलोज, मेड अप ऑफ सिलिका. सेलुलोज made up of two thin overlapping shell-like structures that is as similar to soft box. आपने देखा है soft box? कैसे देखा है? soft box ऐसा दिखता है. ये एक अपर बॉक्स होता है, एक इसका लोअर बॉक्स होता है नीचे की साइड में, दोनों एक दूसरे पे सेट हो जाते हैं. इसके अलावा आपने देखे होंगे इस तरह से एम्बेडिंग फॉर्म. तो इसमें सेल वॉल की पर्टिकुलर कवरिंग होती है, एक नीचे से एक ऊपर से इस तरह से सेट होती है कि वो किसकी फील करवाती है? सॉफ्ट बॉक्स की, मेड अप ऑफ सेलुलोज. दैट इज वेरी आइडेंटिकल फीचर ऑफ सेल वॉल विच इज प्रेजेंट इन क्राइसोफाइट, राइट? इन दो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में, राइट? सिलिका ओवरलैपिंग, सिलिका के पार्टिकल्स बीच में सस्पेंडेड रहते हैं, सिलिका पार्टिकल सस्पेंडेड इन बिटवीन दैट. यहाँ पे सिलिका पार्टिकल्स इस तरह से एम्बेडेड रहते हैं.
इस वजह से इनकी सेल वॉल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ होने के बावजूद भी बची रह जाती है। सेल वॉल indestructible होती है even after the death of these living organisms, or remaining part of the cell wall look like a gold. That's why these are all called golden algae, right? diatomaceous अर्थ कहते हैं उस रिमेनिंग पार्ट को। पॉलिशिंग करने में काम में लेते हैं, बहुत से इंडस्ट्रियल वे में उसको काम में लेते हैं, उस डस्ट पार्टिकल्स को, ठीक है। सी लेवल पे मरने के बाद पूरा का पूरा एरिया इस तरह से है, वो मिट्टी लाइक नजर आता है, जैसे गोल्ड होता है ना वैसा। दैट्स व्हाई इनको गोल्डन एल्गी कहा जाता है, और इनको डायमेटाइट्स भी कहते हैं, डायमेटाइट्स, राइट। सेकंड ग्रुप डायनोफ्लैजिलेट, नाम से पता चल रहा है फ्लैजिला कितने, 2 फ्लैजिला, एक ट्रांसफर और दूसरी लॉन्गिट्यूडिनल। इन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्ट्रक्चर कैसा भी हो, एक यूनिक फीचर है ट्रांसफर फ्लैजिला और दूसरी लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला। फोटोसिंथेटिक ये भी है, फोटोसिंथेटिक ये भी है, तो क्लियर कर चुके हैं। इसमें भी सेल वॉल है, इसमें भी सेल वॉल है, इसमें भी सेलुलोज की बनी हुई है सिलिका के साथ, इसमें सेलुलोज की बनी हुई है, बट सिलिका नहीं है, ध्यान रखना। फोटोसिंथेटिक कलरफुल पिगमेंट्स प्रेजेंट, एज वी नो देयर इज वेरी एलिमेंट्री और यूनिक जो पिगमेंट होता है, सबसे पहले क्या जरूरी है, क्लोरोफिल, उसके साथ में बहुत से दूसरे क्लोरोफिल के साथ साथ अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एसोसिएटेड और एक्सेसरी पिगमेंट्स की फॉर्म में यहाँ होते हैं। बायोलुमिनियस है बिकॉज इनमें सेल वॉल में होने वाले केमिकल कंपोजिशन और केमिकल रिएक्शन की वजह से दे कैन इवॉल्व अ वेरी न्यूमरस कलरफुल लाइट, कभी रेड, कभी पर्पल, कभी एक्वा ग्रीन, इस तरह से नजर आएगा। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, और ये प्लेटेड फॉर्म में होती है, प्लेट एक के ऊपर एक प्लेट की फॉर्म में बनी होती है। तो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हुआ। एक तो क्या होता है कि बिल्कुल सेडिमेंटेशन होता है, सेलुलोज के पार्टिकल जमते चले जाते हैं, मॉलिक्यूल्स जमते चले जाते हैं, यहाँ पे क्या बनता है, एक लेयर बन जाती है। आपने देखा होगा नदी के ऊपर मिट्टी आगे जमती है, फिर दूसरा फ्लो आता है, फिर मिट्टी आगे जमती है, फिर दूसरे तीसरे सीजन में फिर फ्लो आके जमती है। तो इस तरह से आपने देखा होगा मार्बल्स की लाइनिंग बन जाती है, बहुत से स्टोन्स होते हैं उनकी लाइनिंग बन जाती है। उसी तरह से यहाँ सेलुलोज की प्लेटेड फॉर्म में होती है, राइट। गैनीलॉक्स इज द एग्जांपल ऑफ डायनोफ्लैजिलेट, और ये कैसी लाइट जनरेट कर सकते हैं सी के कोस्टल एरिया में, रेड लाइट। तो रेड टाइट्स की फॉर्म में इन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को जाना। ग्रुप यूग्लिनॉइड, सेल वॉल एब्सेंट, ओनली फ्लेक्सिबल पेलिकल लेयर प्रेजेंट। बिकॉज ऑफ दिस फ्लेक्सिबल पेलिकल लेयर जो प्रोटीन की बनी होती है, जिसकी वजह से ये लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्लेक्सिबल होते हैं, फ्लेक्सिबल। 2 फ्लैजिलास आर प्रेजेंट, 1 शॉर्ट एंड 1 लॉन्ग, एक छोटी होती है और एक बड़ी होती है। जैसे ये लिविंग बॉडी है, इस लिविंग बॉडी के ऊपर एक तो छोटी सी फ्लैजिला होती है और एक बड़ी फ्लैजिला होती है। मिक्सोट्रॉपिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। कितने मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉप्स हैं, फोटोट्रॉपिज्म, कीमोटोट्रॉपिज्म, होलोजोइक, सिम्बायोटिक, इसके अलावा आपके आ गया पैरासाइटिक, राइट, दीज आर द सप्रोफिटिक, राइट। तो एक से ज्यादा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रखेगा तो उसको मिक्सोट्रॉपिज्म कहते हैं, और इसमें 2 होते हैं, बिकॉज दे आर ग्रीन, दे पोजेस क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होने की वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिज्म मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुआ, लाइक प्लांट। दे आर होलोजोइक, जब भी कभी सनलाइट नहीं होगी उस कंडीशन के अंदर वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लाइक एनिमल शो करेंगे। सबसे यूनिक फीचर, photosynthetic pigments are identical similar to those present in a higher plant. That is very star point. ये बहुत ही स्टार पॉइंट है एक, कि यहां इसको कभी तो हम प्लांट्स कह रहे हैं, कभी एनिमल्स कह रहे हैं। चलो मान लिया सेल वॉल इसमें एब्सेंट है, सेल वॉल एब्सेंट है, सेल वॉल इज एब्सेंट हियर, इसलिए प्लांट्स को नहीं कह सकते। बट प्लांट्स जैसे आइडेंटिकल क्लोरोफिल यहाँ मौजूद है, क्लोरोप्लास्टिड्स यहाँ मौजूद है, तो ये चीज बड़ी शॉकेबल और एक एक्सप्लेनेशन वाली चीज नहीं हुई, राइट। एग्जाम्पल इज यूग्लिना।
एग्जाम्पल इज यूग्लिना। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अपन स्लाइम मोल्ड। सेलवॉल सेलुलोज की बनी होती है, इधर भी सेलुलोज की मतलब इधर तो सेलवॉल होती ही है। सेलुलोज मेड अप ऑफ सेलुलोज। देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ लाइफ। फर्स्ट प्लाज्मोडियम फॉर्म, दिस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव फॉर्म और वेजिटेटिव फॉर्म। एग्रीगेशन ऑफ वेरियस स्लाइम मोल्ड्स ड्यूरिंग सुटेबल कंडीशन, क्लस्टर बना लेते हैं स्लाइम मोल्ड, उस क्लस्टर फॉर्म को प्लाज्मोडियम फॉर्म कहते हैं। इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, देयर डज नॉट पोजेस एनी काइंड ऑफ सेल वॉल व्हाटएवर। यहाँ सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, पर प्लाज्मोडियम फॉर्म्स में सेल वॉल एब्सेंट है। नेक्स्ट फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म। ये फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म क्या है, ध्यान देना, यहाँ एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव फॉर्म बन रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते टाइम सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं और सेक्सुअल स्पोर्स प्रोटेक्टिंग सिस्ट के थ्रू कवर हो जाते हैं, यहां पर सेल वॉल मौजूद होंगी। ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल कंडीशन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्म्स सेक्सुअल स्पोर्स एंड दीज कवर्ड बाय प्रोटेक्टिंग सिस्ट, और प्रोटेक्टिंग सिस्ट पर सेल वॉल भी बनी होती है, किसकी, सेलुलोज की बनी हुई, राइट। Because of these protecting layer, because of the fruiting body forms, they can resist during extremely unfavorable stressful condition for many years, कई सालों तक in even extreme unfavorable stressful condition में भी अपने आप को tolerate कर सकते हैं without death, right? Example Physarum. This is example Physarum. You can see here the diagram of Physarum. Here the last group of phylum Protista, protozoans Protistae, right? All heterotrophic, they cannot perform photosynthesis. Cell wall is absent here. Most of living organisms are aquatic, free or parasite, right? Aquatic in the sense वो फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं, मीठा पानी, और सलाइन वाटर, मराइन वाटर में भी हो सकते हैं, राइट। तो ऑल हेटेरोट्रॉपिक, पैरासाइटिक एंड प्रीडेटर्स, होलोजोइक, हम भी प्रीडेटर्स होते हैं। एनगल्फिंग करते हैं, फूड को एनगल्फिंग करने के बाद उसे डाइजेस्ट करते हैं। प्रिमिटिव एनिमल्स, दीज हैव अ सिंगल सेल, द होल बॉडी इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, दैट्स व्हाई दे आर प्रिमिटिव एनिमल्स, राइट। फ्री और पैरासाइटिक इन नेचर, पैरासाइटिक में भी एक्सोपैरासाइटिक और एंडोपैरासाइटिक, सेल लेवल पे भी हो सकते हैं, बॉडी के बाहर भी हो सकते हैं। फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर लाइव इन अ वाटर, फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर एंड इन अ मराइन वाटर, राइट। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और प्रीडेटर्स, इन दोनों का मतलब एक ही है। लोकोमोशन मे बी और मे बी नॉट लोकोमोशन, स्टेबल कंडीशन में लोकोमोशन नहीं होगा, लोकोमोटरी ऑर्गन्स विल बी एब्सेंट and locomotion by the specific structure that called locomotory structure. Pseudopodia, maybe cilia, maybe flagellate. According the locomotory organs, we can further divide the protista, protozoans protista in 4 different groups. First, amoeboid, pseudopodia होते हैं, अमीबा का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, फ्रेश में भी हो सकते हैं और मराइन में भी हो सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फ्रेश में वाटर में रहता है, बेसिकली इसका एग्जांपल हो गया अमोइबा। ह्यूमन बीइंग के एलिमेंट्री कैनाल के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप का अमोइबा भी होता है जो पैरासाइट है, उसका नाम है एंट अमोइबा, एंट अमोइबा हिस्टोलिटिका। जो मराइन वाटर में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं, अमोइबोइड्स हैं, दीज आर द सिलिका कवर्ड कहते हैं उसको, कवर्ड और शेल्ड अमोइबॉइड। फ्लैजिला जिन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में होता है उन प्रोटोजोन प्रोटिस्टा को कहते हैं फ्लैजिलेट। पैरासाइट्स भी हो सकते हैं और फ्री भी हो सकते हैं। एग्जांपल इज पैरामीशियम, राइट। सिलिया मौजूद है, न्यूमरस फाइबर लाइक पिस्टल्स, fiber like distal like structures in a millions numbers are present in the whole body. Sleeper shape like structures basically. Sorry, यहाँ एग्जांपल है ट्रिप्नोसोमा।
ट्रिप्नोसोमा, ठीक है, ह्यूमन बीइंग के अंदर एंडोपैरासाइट है। और सिलिटा में एग्जांपल है पैरामीशियम, ठीक है। एक्वेटिक है, सीलिया मौजूद है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एनगल्फिंग करने के लिए गलत होती है, गलत लाइक एलिमेंट्री कैनाल जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर है, बट नॉट these are only a single cell, but the systems or organs are absent. But like the system or organs, they like system and organs levels, they have a specific unique features, galactic, right? Example is paramecium. ये paramecium जैसे हमारी चप्पल होती है ना, तो शेप के होते हैं, तो इसलिए इनको इनके ऊपर इस तरह से सिलिया होती है। That's why they call ciliata. स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप, स्ट्रक्चर देख सकते हो यहाँ पर। स्पेसिफिक टाइप के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो जिसकी वजह से फूड को अनगल्फिंग कर सकते हैं। स्पोरोजोअन्स, infectious sporozoite stage present in their life. They are all parasitic in nature. पैरासाइटिक भी कौन सा? एंडोपैरासाइटिक, राइट। एग्जाम्पल, इनमें लोकोमोशन नहीं होता, लोकोमोटिव ऑर्गन एब्सेंट है। एग्जाम्पल इज प्लाज्मोडियम, अंडरलाइन कर दिया। दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन प्रोटिस्टियन। मलेरिया का पैरासाइट है। द मलेरिया पैरासाइट, कौन सी स्टेज मलेरिया के पैरासाइट की सबसे इंफेक्शियस स्टेज है? दैट्स कॉल्ड स्पोरोजॉइट। दिस इज ऑल अबाउट द प्रोटिस्टा फाइलम। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ आएंगे। उस सेशन में हम पढ़ेंगे किंगडम फंजाई। सिलेक्ट, कीप रिवाइजन एंड रेगुलरली अपने सिलेबस को अच्छे से कवर करके रखें। गुड बाय।